اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر چاکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کی بعثت کا کیا مدعا تھا، انبیاء اکرام کی بعثت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کامن ہیں، جب قوم میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا ہے۔ میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک پہلو، ایک چیز کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بعثت کا وہ کیا مطلب تھا، وہ کیا مقصد تھا، کیا مدعا تھا، کیا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، جو وہ چیز ہے۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہانی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنائی ہوئی ہے اس میں بہت جھول ہے، یہ ٹھیک نہیں لگتی۔ تو اس لیے میں یہ آپ کے سامنے ایک آیت غور و فکر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، سوچ و بچار کے لیے، یا آپ میری بھی نشاندہی کر دیں کہ میں اس آیت سے کیا مطلب لیتا ہوں۔ مطلب تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، جو کہ بہت سارے مطالب لے لیتے ہیں، مطلب تو ایک ہی بنتا ہے، ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس بات کو جو کہانی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اس کے جو الجھنیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صف کی 6 نمبر آیت۔ یہ کہانی کچھ شروع کیسے ہوتی ہے، بنائی کیسے گئی، فرق کہاں سے ڈالا گیا، وہ بھی میں بتا دوں۔ یہ نساء کی 58 نمبر آیت ہے۔ اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ نے جب اپنی طرف اٹھا لیا تو یہاں سے ہم نے یہ کہانی بنائی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی موت نہیں آئی ان کو، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی زندہ ان کو اٹھا لیا۔ اسی طرح کے الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھایا، یہ مریم کی 57 نمبر آیت ہے۔ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ وہ 58 نمبر آیت ہے نساء کی، یہ 57 نمبر آیت ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھا لی۔ بلند مقام اور اللہ کی طرف اٹھانا کیا فرق ہے اس میں؟ جب بلندی کا تصور آتا ہے تو وہ اللہ کی ہی طرف آتا ہے، اللہ بلند مقام پر۔ خیر، یہ کہانی جو بنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس میں یہ آیت جو ہے 6 نمبر، یہ صف ہے 61 نمبر سورت، اور اس کی آیت ہے 6 نمبر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اور ان کا مدعا کیا تھا، اپنے آنے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں وہ۔ یہ جب وہ بتائیں، میں آیت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي وَمِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا ھذا سحر مبین۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تورات، تو اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچی کتاب تھی۔ اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلی آیت میں ذکر ہے۔ اور اپنے بعد آنے والے، جو میں جس چیز کے لیے میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھی، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगे ये तो खुला जादू है। यहां से फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए, कौन लाए? कुछ ने कह दिया कि ये ईसा अलैहिस्सलामी बात, जो मोजज़ात, वो मूर्तियां बनाते थे, फूंक मारते थे तो वो जिंदा हो जाती, वो अलग कहानी है। वो भी एक कहानी है, कहानी बनाई हुई है। हम नबी मूर्तियां बनाता था, घर में बैठ कर लोगों के सामने बाजार में निकल के उनको फूंक मारता था, ऐसे ही मंजर नजर आता है। तो फिर वो परिंदे बनकर, और पता नहीं कौन सा परिंदा बनकर उड़ जाती थी, कौवा बनता था, चिड़िया बनती थी, तोता बनता था, कबूतर बनता था, वो बनकर उड़ जाती थी। तो वो लोगों को कहते कि देखे ये मैं कर लेता हूँ, तो लिहाजा जो मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह का नबी रसूल हूँ, तो तुम मेरे मुझ पर ईमान लाओ। या दूसरे लोग कुछ ये भी कहते हैं कि फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए, कौन लाए? जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, तो ये कहने लगे ये तो खुला जादू है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर भी कहा, हाजा शेर मुबीन, ये तो खुला जादू है। ये आपकी तरफीद। यहाँ शहर से हमने भी जो हम जादूगरों का मामला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बुखारी की एक रवायत के मुताबिक जादू साबित कर दिया कि आप पर जादू हो गया। बेसिकली जो जादू का मतलब शहर का ये है, मतलब जो झूठ है, इसका मानी झूठ है कि जो कुछ तुम कह रहे हो माज़अल्लाह, ये सब कुछ झूठ है। तो मुद्दा क्या हुआ मेरे इस बात करने का, बयान करने का, कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाद नहीं हुआ? आपकी पैदाइश हुई, वो भी कुल कहानी है बनाई। फिर आगे जो वफात हुई, वो भी कहानी बना ली हमने कि वफात तो हो गई आपकी, फिर चले, फिर आपकी नबूवत चलती रही। ये नहीं आपके वफात होने के बाद ही फौरन आपकी नबूवत का दौर खत्म हो जाता है। नबूवत का दौर उस वक्त तक रहा जब तक अगला नबी नहीं आ गया जिनकी उन्होंने बिशारत की थी। अगला नबी आ गया जब, अहमद नाम बताया जा रहा है कि उनका नाम अहमद होगा, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम अहमद बता रहे हैं, आपका नाम अहमद भी है, मोहम्मद भी है। तो उनकी जब वो आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का वक्त खत्म हो गया, नबूवत का वक्त खत्म हो गया। अब आपकी नबूवत पर ईमान वाला बंदा ईमान वाला नहीं कहलाएगा जब तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ना ले आए। अगर आपकी नबूवत का इनकार करे तो वो ईमान वाला नहीं होगा, उनका नाम ईमान कंसिडर नहीं होगा। अगर आपके लाने नबूवत से पहले बंदा कोई उन पर ईमान लाया हुआ फौत हो जाता है तो वो मुसलमान तस्वर होगा। यहाँ मेरा मतलब है कि जो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के बारे में कहानियाँ जो बनाई हुई हैं, वो मुसलमान थे या माज़अल्लाह काफिर थे, क्या थे, फिर किस तरह की आगे रवायात हैं, आपने जिंदा किया वालदा, वो इस तरह की भी बातें की जाती हैं। फिर उनको कलमा पढ़ाया भी, नहीं जी वो मुसलमान थे। यार जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने नबूवत किया ही नहीं था, तो उससे पहले जितने वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, वो सच्चा ईमान रखते थे, तो वो मुसलमान थे, वो मुसलमान फौत हुए। तो ये मैं सिर्फ बाद वाली बात, ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात है, ईसा अलैहिस्सलाम जो बाद की खुशखबरी सुनाने आए थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपका बाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और जब आपने अल्लाह ने नबूवत फरमा दिया, तो बस वहां तक ईसा अलैहिस्सलाम का बाद खत्म हो जाता है। वो जो खुशखबरी सुनाई वो पूरी हो जाती है। वो जो बेसत का मकसद बताया जा रहा है कि मैं क्या करने आया था, पहली बात उन्हें किताब जो पहली तौरात उसकी तस्दीक करने वाला, और मेरे बाद जो आने वाला रसूल है उसकी मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला आया। तो वो बात खत्म हो गया। बस यही होता ना पहले और बाद किसी बंदे का। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात करेंगे तो आपसे पहले हम यही कहेंगे कि आपसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे,
उनकी पैगंबरी कब तक थी? जब तक आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो पैदाइश हो गई, पैदाइश से पहले कौन से पैगंबर थे? ईसा अलैहिस्सलाम थे। आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया उससे पहले कौन से पैगंबर थे? ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर आपकी वफात हो गई। जब आपकी वफात फिर ही कहेंगे कि आपके बाद जो पहले खलीफा बने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। वफात हुई ना आपकी, आपकी वफात हुई तो अबू बकर बने। फिर अबू बकर की वफात हुई तो हजरत अबू उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वफात हुई उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वफात हुई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो क्यों मुगालतों में हम पड़ गए हैं? इन मुगालतों में क्यों पड़े हुए हैं? मुझे इस बात की समझ में सिर्फ ये इसमें ये एक बात मेरी थी कि क्या वो मकसद जो आप बता रहे हैं अपनी बेइज्जत का, क्या वो अभी पूरा हुआ या नहीं हुआ? हो भाई, हो गया, आपकी वफात हो गई। आप तो आप आगे देखें, वफात के हवाले से भी बड़ी बड़ी वाज़ेह एक आयत है, ये सूरत माइदा की 117 नंबर। लेकिन वहां भी हमने वफात के पता नहीं क्या क्या टेक्निकल अल्फाज में पढ़ के तो उसको कहानी को पता नहीं क्या बताते हैं, हालांकि बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में उसमें लफाज आते हैं कि ये सूरत माइदा की 117 नंबर, जिसका मफहूम है मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा। अच्छा, इससे पहले है वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या ईसा इब्न फरमाएगा, ये रोजे मैशर की बात हो रही है। चले ये मैं अर्ज कर देता हूँ, ये कितनी अहम बात है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद करार दे लो? ईसा अर्ज करेंगे कि मैं तो तुझको मुनज़्ज़ह समझता हूँ, मुझको पाक है तू बारी ताला इस चीज से कि मुझको किस तरह ज़ेबा ना था, मुझको किसी तरह ज़ेबा ना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझको कोई हक नहीं। नबी कहता ही नहीं, नबी ने तो वही कहना है जो अल्लाह कहता है, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं कर सकता, कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म होगा, जो मैंने अगर कहा तो तुम्हें सारा इल्म है, तो तू मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है उसको नहीं जानता। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, तमाम गैबों के जानने वाला तू ही है। ये रोज़े महशर की बात है। अब देखिए अगली आयत, मैंने तो उसका मफहूम, मैंने तो इनसे वो कुछ नहीं कहा जो ये मेरे बारे में कहते हैं, कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था। सीधी सी बात है, नबी कुछ नहीं अपनी तरफ से कह सकता, नहीं कहता। जो कुछ अल्लाह ने कहा वही बात उन्होंने आगे कही। फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह का हुक्म मानो। बंदगी का मतलब ही ये है, और जो हमने ले लिए हैं ये गलत है हमारे। अल्लाह का हुक्म मानना है, हुक्म मानना ही बंदगी है, हुक्म मानना ही बंदा होने का इकरार है कि मैं उसका बंदा, जिसका हुक्म मानेंगे उसी का बंदा है। इख्तियार करो, जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, मैं इन पर गवाह रहा जब तक इनमें रहा, जब तक इनमें रहा। फिर जब तूने मुझको ठा लिया, ये तर्जमा करने वाला गलत तर्जमा कर रहा है, फिर जब तूने मुझको ठा लिया तो तू ही इन पर मुतले रहा और तू हर चीज की पूरी खबर रखने वाला है। देखिए लफ्ज है फलम्मा तवफ़ैतानी, बस जब तूने मुझे मौत दे दी। तुम्हें मौत पड़ती है अगर यही लफ्ज यहां लिख देते। ये तर्जमा कर देखे, तर्जमा है ना, आप हमने तर्जमों पर इंसार करना होता है। जो अरबी दान नहीं है, हमें अरबी का नहीं पता, जो तर्जमे किए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो जुबान हम समझ जाएं, कुरान को समझने के लिए। अरबी का समझना भी जरूरी है, लेकिन इतने माहिर कोई नहीं होता, नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते। तर्जमा कर दिया जाता है उसकी जुबान में, चले वो बात को समझ ले। तो जो देखे ये करने वाले को मैंने जो लफ्ज कहे वही कि तुम्हें मौत पड़ती है कि तुम इधर इधर यही लफ्ज लगाओ जो अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहा है। फलम्मा तवफ़ैतानी, जब तूने मुझे वफात दी। फिर ये देखिए यही टेक्निकल अगर इनसे पूछा जाए तो पता नहीं ग्रामर की कौन कौन सी चीजें ला के वो कहेंगे कि नहीं यही मतलब है, मौत का भी यही मतलब है, ऊपर उठा ले। मैं बात कर रहा था ईसा अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने
फरमाया था कि मैं आया हूँ खुशखबरी सुनाने वाला, मैं अपने बाद आने वाले रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला। तो वो बाद हुआ आपकी वफात के बाद, और इस ऐत से वाज़ेह होता है तवफ़ैतानी, तू जब तो फलम्मा तवफ़ैतानी, जब तूने मुझे वफात दी, जब मैं फौत हो गया तो फिर उसके बाद तो मैं नहीं ना जिम्मेदार किसी चीज का। फिर जब तूने मुझे वफात दी तो तू ही इन पर मुतले था, तुम्हें फिर पता है कि इन्होंने क्या किया या क्या करते रहे, और तू हर चीज की पूरी खबर रखता है। ये देखें तर्जुमों में डंडी मारनी कितना बड़ा जुल्म है। कुरान है, ये कोई आम चीज नहीं है, को आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे किसी और चीज को, कुरान कुरान पाक की ये कर रहे हैं। तो तुम लिख दो तो जब तूने मुझे वफात दी, क्यों नहीं लिखा? ये कितना जुल्म किया। तो खैर मैं ये सफ की 6 नंबर आयत ही आपके सामने के जरिए कि आपकी बेशक ये जो डंडी मारने वाले हैं इनका कीदा भी यही, ईसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, तो तमाम अंबिया करम जिंदा हैं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की तखसीस क्यों करते हैं? हम यही कीदा ना हम हमारा तमाम सब का। हमें भाइयों क्या पता, आलमी बरज़ख जो पर्दा है दरमान में है, उसके आगे का हमें नहीं पता, और उधर जो है उनको इधर का नहीं पता। ये बात तय है, ये कुरान के मुताबिक है कि बरज़ख है दरमियान में, एक पर्दा हायल है। हम मरने के बाद बंदा उस तरफ चला जाता है, उसको इधर की खबर नहीं होती, और उधर वालों को इधर की खबर नहीं होती, इधर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। खैर ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी बेइज्जत की ये मैं बात अर्ज करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, आपका बाद ख़त्म हो गया, आपके बाद जो आपने खुशखबरी सुनाई वो पूरी हो गई। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उन्होंने अपनी नबूवत का वक्त पूरा किया। वो भी वफात पा गए, अब वो भी वफात पा गए, अब उनका दीन आगे चल रहा है और इसने क़यामत तक चलना है। ये बात तय है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अल्लाह किसी से हम कलाम नहीं होगा। ये और एक खराबी शुरू हो जाती है, यहाँ से वलायत शुरू हो जाती है कि शायद अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी कोई चीज़ बता दे, कर दे, गलत बात बिल्कुल। अल्लाह किसी ये बात करना ख़त्म मोहरे ख़त्म नबूवत को तोड़ने वाली बात है। किसी से इशारा तन कनाया तन अल्लाह ताला कलाम नहीं करता। जिस बंदे से अल्लाह ताला ने आखिरी बात की है और आखिरी बंदे से जिससे बात की है, उसका नाम सिर्फ अहमद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद कोई बंदा नहीं है जिससे अल्लाह ताला हम कलाम हुआ इशारे से या कनाए से किसी तरह भी। ये नबूवत की खुसूसियत है, इस पर भी बात अलग से हो जाएगी किसी वक्त, लेकिन सारे दस्त में यही बताना चाहता था। ईसा अलैहिस्सलाम का बाद ख़त्म हो गया आपकी वफात के साथ, वफात वाली ऐत भी बता दी आपको, और उसके बाद जो आपने खुशखबरी सुनाई वो भी पूरी होगी, वो भी बता दी। फिर क्या उलझन है, क्यों कहानियों में पड़े हुए हैं? ये रवायात ने हमें डाला हुआ है। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।